Dear friends and students, there are some more sentences which we are going to combine into relative clauses. Before that, I want to remind you that you should be very well acquainted with the antecedent and the pronoun that are present in both the sentences. For example, let us see. First sentence, I met a man. He was shivering with cold. Here, the two relatives are, one is man and the other is he. And suppose we are making a relative clause, in that condition we have to delete he and we have to write who in place of he. And now let us see, the who which we have written is near the antecedent. It is not away from the antecedent, it is near the antecedent, and that is what the point I wanted to convince you, that you may get different type of sentences, and according to the sentence you will have to combine the sentences into one and make a relative clause. So we should be very well acquainted with the fact where the pronoun and antecedent are existing. Is it nearer to each other or not? Let us see in the second one. He put me a question. The question was tricky. Here the first sentence tells about question and the second sentence also about question. So now we will delete this one because these two are the relatives. Question and question are the relatives. Therefore the second question, the second relative will be deleted and we will write which or that in place of it, and we will call the answer as he put me a question that was tricky or which was tricky. Now let us see the third sentence. The doctor discharged the patient. His condition got improved. Ab here please look at this antecedent patient, and equal word for patient is his. Therefore his will be deleted and whose will be written on its place, and whose and patient, they are nearer to each other. Then the fourth sentence, we caught the thief. The police were searching for him. Here the mention is about the thief, and here for the thief again the other word used is him. But what happens? The word him is at the end of the sentence. Therefore, when we delete this, we should remember that we can use whom, and this whom should be taken to the antecedent, where the antecedent is, and the answer will be called as we caught the thief whom the police were searching for. Here the sentence will come to an end. So, remember the pronoun in the or noun in the second sentence will be deleted and a proper relative pronoun will be written, and the relative pronoun will go with the antecedent. This is the thing which I want to convey to you just now. Dear students, इन वाक्यों को देखिए. रिलेटिव क्लॉज बनाने के लिए हमारे सामने दो वाक्य दिए जाएंगे और उन दोनों वाक्यों में आप ये देखें कि दोनों में आपस में रिलेट होने वाले, आपस में जुड़ने वाले, एक दूसरे के इक्वल कौन कौन है. फर्स्ट सेंटेंस में देखिए मैन है, दूसरे सेंटेंस में ही है, और हम दूसरे सेंटेंस को लेकर के हमारा आंसर बनाना शुरू कर दें. यही 90% सेंटेंसेस में होता है. तो हम क्या करें, हम इस ही को आइडेंटिफाई करेंगे और पाएंगे कि ही के बराबर का रिलेटिव प्रोनाउन है हु, और इस कारण से हम ही को यहाँ से डिलीट करके हु लिख देंगे और हमारा रिलेटिव क्लॉज है हु वाज शिवरिंग विथ कोल्ड, और हम इस रिलेटिव क्लॉज को इसके पहले जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को हम मेन क्लॉज मान करके उससे जोड़ देंगे. तो आप अब ध्यान दें कि ये जो हु इसमें आया हुआ है, ये हु यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ जो वर्ड है जिसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं ग्रामर में, ये दोनों पास पास है. रिलेटिव क्लॉसेस एक प्रकार के रिलेटिव क्लॉज ऐसे है जो एंटीसीडेंट और ये रिलेटिव प्रोनाउन दोनों बिल्कुल पास पास रहेंगे.
अब हम देखें सेकंड सेंटेंस, ही पुट मी अ क्वेश्चन, द क्वेश्चन वाज ट्रिकी। यहाँ पर दोनों सेंटेंस में क्वेश्चन के बारे में है, इसलिए ये दोनों हमारे सामने सेम है। और हम इसको डिलीट करेंगे और इसको डिलीट करते समय यहाँ पर हम इसकी जगह पर विच या दैट का यूज़ करेंगे। और अब हम देखेंगे विच या दैट इस क्वेश्चन के बिल्कुल पास में है। अब आप देखें, ये अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो सेंटेंसेस हम बनाने वाले हैं उसमें हमें थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस कारण से कि हम अभी फ़िलहाल ये समझ नहीं पाए तो उस समय हमसे गलती होने की पूरी गुंजाइश है। तीसरा सेंटेंस देखिए, द डॉक्टर डिस्चार्ज्ड द पेशेंट को डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। हिज कंडीशन गॉट इम्प्रूव्ड, डिस्चार्ज करा, उसकी जो स्थिति जो थी वो खराब वाली वो अच्छी हो गई इस कारण से। तो यहाँ पर पेशेंट और पेशेंट का इक्वल हिस, ये दोनों वर्ड है। यहाँ से ये हिस को हम रिमूव करेंगे। हिस पोसेसिव होने के कारण हम हुस का प्रयोग करेंगे, ना कि हु का। और यहाँ पर हुस का प्रयोग करेंगे तो ये हुस पेशेंट से एक साथ जुड़ करके दोनों पास पास बैठ करके रिलेटिव क्लॉज और मेन क्लॉज का फंक्शन करेंगे। वी कोट द थीफ, द पुलिस वर सर्चिंग फॉर हिम। यहाँ पर ये जो बात हो रही है वो थीफ, चोर के ऊपर हो रही है, और चोर के लिए जो बराबर का शब्द है वो हिम है, और ये हिम सबसे लास्ट में है। सबसे लास्ट में होने से ये ऑब्जेक्ट होता है, और इस कारण से ऑब्जेक्ट के बदले हमको हुम का प्रयोग करना चाहिए। और ये हुम हम यहाँ पे ना लिखते हुए, ये हुम हम यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ लिखेंगे तो हम जोड़ नहीं पाएंगे, और उसको हम ये जो एंटीसीडेंट है एंटीसीडेंट के पास में ला करके फिर हम जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा वी कोट द थीफ हुम द पुलिस वर सर्चिंग फॉर। यहाँ आकर के ये सेंटेंस खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम जो सेंटेंसेस देखने वाले हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें आ सकती है। इस कारण से आप अंडरलाइन करने की जो प्रवृत्ति है उसको आप बिल्कुल बराबर बाकायदा बनाए रखें, क्योंकि वो अंडरलाइन करने वाला जो आपका जो तरीका है वो आपको बहुत काम आ जाएगा। डियर फ्रेंड्स, रिलेटिव क्लॉज बनाने के लिए जो दो सेंटेंसेस दिए जाएंगे वो हमारे सामने नीचे जो मैं बताने वाला हूँ उसमें से दो स्थिति में से कोई एक स्थिति लेकर के हमारे सामने आ सकते हैं। उसमें से पहली स्थिति के सेंटेंसेस को अभी हमने थोड़ी देर पहले का देख लिया है, और उसको फिर से एक बार और देखें। एक सेंटेंस देखिए, आई नो ए मैकेनिक, ही कैन रिपेयर योर कार। यहाँ पर मैकेनिक के बारे में है और इसका इक्वल है ही, और इस कारण से हम क्या करेंगे, इस ही को हम डिलीट करेंगे, और ये ही का इक्वल मैकेनिक है, ये एंटीसीडेंट है, और हमने सेंटेंस बनाया तो एंटीसीडेंट और हु ये दोनों पास पास आ करके सेंटेंस बना चुके हैं। और इसमें आप देखेंगे कि जो रिलेटिव क्लॉज है वो रिलेटिव क्लॉज मेन क्लॉज के आखिरी में जाकर के जुड़ चुका है। यहाँ पर कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम देख चुके हैं। अब हम देखें जहाँ हमें प्रॉब्लम आएगी वो वाला सेंटेंस देखिए, द मैकेनिक हैज़ कम फॉर पेमेंट, ही रिपेयर्ड योर कार। अब इस सेंटेंस को देखिए, द मैकेनिक हैज़ कम फॉर पेमेंट, यहाँ पर बात मैकेनिक की हो रही है, और सेकंड सेंटेंस में ही उस मैकेनिक का इक्वल है। और हम नियमानुसार क्या करेंगे, अब हम इस सेंटेंस को सावधानी से बनाते हैं। हम इस ही को डिलीट करेंगे और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर लिखेंगे हु, और ये ही डिलीट होकर के हु लिखा गया। तो हमने ये सबसे पहला काम किया, सेकंड सेंटेंस को रिलेटिव क्लॉज में चेंज कर दिया, और ये हो गया पटने में आएगा हु रिपेयर्ड योर कार। अब हमारी समस्या ये है कि अब हम इसको सेंटेंस को जो ऊपर के जो सेंटेंस है उससे जोड़ना चाहते हैं, तो क्या हम यहाँ पर जोड़ेंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि ये शब्द हमारा एंटीसीडेंट नहीं है। फिर कौन है एंटीसीडेंट? एंटीसीडेंट यहाँ बैठा हुआ है। इस कारण से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मेन क्लॉज बनने वाला जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस दो टुकड़े में यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। या नीचे देखिए, द मैकेनिक, ये इसलिए मैंने कहा था आपसे कि अंडरलाइन करना जरूरी है,
ये अंडरलाइन किया हुआ है, ये एंटीसीडेंट है, और ये हु रिपेयर्ड योर कार जो है वो एंटीसीडेंट के पास में आके बैठना चाहिए। ऐसी स्थिति में ये जो पार्ट है इसको धक्का दे करके आगे निकाल के फिर लिखना चाहिए। तो हम इतने पार्ट को यहाँ से लेकर के यहाँ लिख देते हैं, और इस पार्ट को हम थोड़ी देर के लिए पेंडिंग करेंगे, और हमने जिसको रिपेयर करके बनाया हु रिपेयर्ड योर कार को यहाँ लिखेंगे। और इस पार्ट को यहाँ लिखेंगे। इसका मतलब है रिलेटिव क्लॉज ने नाउन क्लॉज को तोड़ दिया, और तोड़ के उसने जो रिलेटिव प्रोनाउन था उसने अपने रिलेटिव को ढूंढ लिया और उसके पास में जाके बैठ के इन्होंने ये रिलेटिव क्लॉज ने ये पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है। अब इस प्रकार बनाने की जो जोड़ तोड़ है, ये जोड़ तोड़ के बारे में आपको अच्छे से अच्छी जानकारी होना चाहिए, तब जाकर के हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को बना पाएंगे। अब फिर से देखिए, यहाँ पर ये दोनों पास पास है, इस कारण से ये आखिरी में जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये अलग जगह पर है और ये सेंटेंस अलग है, और ये सेंटेंस अब घुसेगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये हु या दैट या विच जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो चाहेगा ये पूरे सेंटेंस को लेकर के वो यहाँ अपने एंटीसीडेंट के पास में आके बैठना चाहेगा। इस कारण से ये एंटीसीडेंट है और ये रिलेटिव क्लॉज है और ये मेन क्लॉज का शेष भाग। इस प्रकार सेंटेंसेस बनाना सीख लेना अच्छा होगा।